Next, who changed after October? So, the Bolsheviks were totally opposed to private property. Most industry and banks were nationalized in November 1917. This meant that government took over. जितनी भी ओनरशिप और मैनेजमेंट जो था लैंड का, वो सब गवर्नमेंट ने टुक ओवर कर लिया था. लैंड वॉज डिक्लेयर्ड सोशल प्रॉपर्टी, एक तरह से उसको सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया था. एंड peasants were allowed to seize the land of nobility. In cities, जो दूसरे जो शहर थे, Bolshevik enforced the partition of large houses according to family requirement. जितनी भी थी फैमिली रिक्वायरमेंट्स जो लोगों की होती थी उस समय, लार्ज हाउसेस के तौर पर बेशाविक जो थे उन्होंने एक पार्टीशन एनफोर्स किया था. दे बैंड द यूज़ ऑफ ओल्ड टाइल्स, जो एरिस्टोक्रेसी के टाइम के थे ओल्ड टाइल्स, उनको बैन कर दिया गया था. टू असर्ट द चेंज, न्यू यूनिफॉर्म्स वर डिज़ाइंड सोल्जर्स के लिए. और following a clothing competition organized in 1918, when the Soviet, जब उनको चूज़ किया गया, Bolshevik party was renamed the Russian Communist Party. और in November 1970, Bolshevik conducted the election of Constituent Assembly as well. Bolshevik made peace with Germany at Brest-Litovsk, as well as Russian Congress का जो सोवियत था, which became the parliament of country. Russian became a one party state. एक one party state जो था रशिया को वो बना दिया गया था. ट्रेड यूनियंस वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल. जितने भी ट्रेड यूनियंस का काम होता था वो पार्टी के कंट्रोल में ही रहता था. एंड मैनी यंग राइटर्स और आर्टिस्ट्स रिलाइड टू द पार्टी एज वेल बिकॉज इट stood for socialism and for change. After October 1917, this led to the experiments of arts or architecture, जैसा कि हम लोग जानते हैं. But many became disillusioned because of censorship and party encouraged. After that, we'll come to civil war. When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army जो थी उनके बीच में एक ब्रेकअप सा स्टार्ट हो गया था. सोल्जर्स, मोस्टली पीजेंट्स, विश टू गो होम. जो पीजेंट्स होते थे, सोल्जर्स होते थे, वो पीजेंट्स भी होते थे और वो घर जाना चाहते थे. एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजर्टेड. All Bolshevik socialist liberals and supporters of aristocracy condemned the Bolshevik uprising. Their leaders moved to South Russia and organized troops to fight the Bolsheviks. During 1980-1999, Greens and Whites controlled most of the Russian Empire, and they were backed by French, American, British and Japanese troops as well. सपोर्टर्स जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के थे वो वाइट्स के, वाइट और ब्लैक. अब एक ये डिफ्रेंसिएशन आने लगा था लोगों में. जो वाइट के जो सपोर्टर्स थे प्राइवेट प्रॉपर्टी उनकी तरफ ज़्यादा हुआ करती थी. हार्श स्टेप्स लेते थे वो लोग पीजेंट्स की तरफ, हु हैड सीज्ड लैंड, जिन्होंने लैंड एक तरह से अपने कंट्रोल में ले रही थी. सच एक्शंस जो थे ये बहुत सारे जो नॉन बैशविक जो सपोर्ट थे उनके अगेंस्ट ये चीज़ चली गई थी. इन जनवरी 1920 द Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire and to cooperate with non-Russian nationalities and Muslim. Partly the remedy this, most non-Russian nationalists जो थे they were actually given the autonomy in Soviet Union. उनको मौका दिया गया उसमें and in Russian Empire in December 1922. But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow. Harsh discouragement तो था nomadism का, एक वो भी उभर कर इस सिचुएशन में सामने आया. Now making a socialist society. During the civil war, the Bolsheviks keep industries and banks nationalized. They permitted peasants to cultivate land. उन्होंने peasants को permit किया land cultivation के लिए. और being socialized, Bolsheviks used confiscated land to demonstrate what collective work could be. एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की गई
प्रोसेस में लाया गया, उसको इंट्रोडक्शन दिया गया, उसका ऑफिशियल असेस्ड इकोनॉमी ताकि सेट की जा सके, टारगेट सेट किए गए 5 ईयर प्लानिंग के लिए, उसका पीरियड किस तरह से चलना चाहिए वो 5 ईयर प्लानिंग का, वो सेटअप किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ मेड द 5 ईयर प्लान्स, उसके अकॉर्डिंग 5 साल के 5 ईयर प्लान्स बनाए गए। गवर्नमेंट फिक्स्ड ऑल द प्राइजेज इंडस्ट्रियल ग्रोथ वगैरह के लिए। फर्स्ट 2 प्लान्स सेंट्रलाइज्ड प्लान लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में इंक्रीज हो सके, है ना। 100% केस ऑफ ऑयल, कोल, स्टील, इस तरह की चीज़ें डेवलप्ड हो सकें, ठीक है। न्यू फैक्ट्री सिटीज़ केम इनटू बीइंग, वो आ सकें। हाउएवर रैपिड कंस्ट्रक्शन लेड टू पुअर वर्किंग कंडीशन। रैपिड कंस्ट्रक्शन यानी एक के बाद एक जो कंस्ट्रक्शन होता गया वो वर्किंग कंडीशन को और बुरा करता चला गया। In the city of Magnitogorsk, the construction of a steel plant was achieved in 3 years. 3 साल में वो स्टील प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन था वो हो पाया। वर्कर्स लिव्ड हार्ड लाइफ, काफ़ी मुश्किल लाइफ उन्होंने सर्वाइव की, लिविंग इन क्वार्टर्स जिसमें कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी। हेलो। एन एक्सटेंडिंग स्कूलिंग सिस्टम भी डेवलप किया गया। इनफैक्ट अरेंजमेंट्स किए गए फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चों के लिए, यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप की गई। और जो विमेन, जो चिल्ड्रन जो थे उन वर्कर्स के, उनको और भी ज़्यादा सहूलियतें प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी रिसोर्सेज वो लोग अवेलेबल कराने लगे। बच्चों के प्राइमरी स्कूल्स खुलने लगे। नाउ स्टेलानाइजिंग इन कलेक्टिवाइजेशन, द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी जो है उनको डिज़ास्टर्स के साथ एक तरह से लिंक किया जाने लगा, एग्रीकल्चर वगैरह सब कुछ मिला के। टाउन्स ऑफ सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज एज वेल एज द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइजेज। जो ग्रेन्स पे थी, जिनको बेचना ही था, पीजेंट्स जो था उन लोगों ने काफ़ी हद तक एक तरह से उनको रिफ्यूज़ कर दिया था सेल करने के लिए, एंड गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेज। इसके अलावा स्टालिन जो थे हु हेडेड द पार्टी आफ्टर डेथ ऑफ लेनिन इंट्रोड्यूस्ड फर्म एमरजेंसी मेजर्स भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किए। ही बिलीव दो रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स थे कंट्री साइड पे, दे वर ऑल होल्डिंग द स्टॉक्स ऑफ हायर प्राइजेज। स्पेक्यूलेशंस, जिन सप्लाईज जो थे वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल हो गए और बहुत ही कंफ्यूज्ड तरीके से उनको आगे सेल करने के लिए प्रोसेस किया जाने लगा। Party members stirred grain producing area, supervising enforced grain collections and riding khaluks, named well-to-do peasants. इसी को फॉलो करते हुए स्टालिन्स का कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स ऑफ कल्टिवेट, जो इम्प्लीमेंट जो किए गए ताकि ओनरशिप को आगे कलेक्टिव फॉर्म में रखा जाए। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कालखोज डिस्ट्रॉयड देयर लाइफ स्टॉक्स। बिटवीन 1929 एंड 1931 द नंबर ऑफ कैटल फेल 1/3। काफ़ी हद तक कैटल्स को भी इफ़ेक्ट हो रहा था इस चीज़ का। वर डिपोर्टेड एंड एक्साइल, बहुत सौ को फील्ड से निकाल दिया गया, एक्साइल कर दिया गया। दे रेस्ट्रिक्टेड कलेक्टिवाइजेशन। पीजेंट्स आर्ग्यूड दैट दे वर नॉट रिच। पीजेंट्स ने आर्ग्यू किया कि उनके पास इतना पैसा नहीं है और दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, और वो सोशलिज्म के अगेंस्ट नहीं है। दे मेयरली डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क इन कलेक्टिव फॉर्म्स, बट वो कलेक्टिव फॉर्म्स में काम करना, हाँ जी मैम, बट वो लोग कलेक्टिव फॉर्म्स में काम करना नहीं चाहते थे। एंड स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टिवेशन बट ट्रीटेड सच कल्टिवेटर्स अनसिम्पथेटिकली। किसी तरह की सिंपैथी इन लोगों की तरफ नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज। इतना सारा एक कलेक्टिव फार्म में काम होने के बावजूद भी प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो पाई।
इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट 1933 के आसपास बैड डिवास्टेटिंग हार्वेस्ट हुआ, जिससे एक फेमाइन आया, यानी कि एक महामारी आई. सोवियत हिस्ट्री वॉज ओवर 4 मिलियन डाइड. सोवियत हिस्ट्री में 4 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो थे वो मारे गए. The global influence of Russian Revolution in USSR. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve the way of Bolshevik took power. Bolshevik ने जिस तरह से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया था और यूजलेस चीज़ें, यूजलेस इम्प्लीमेंटेशन उन लोगों ने वो फोर्स में लेकर आए थे. इस तरह से पूरी तरह जो एक पावर एक ऑफिशियल की होनी चाहिए थी वो नहीं थी. एंड इट केप्ट हाउएवर द पॉसिबिलिटी वर्कर्स के जो स्टेट ऑफ माइंड की थी, दे वर फायर्ड पीपल इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टीज़ वर फॉर्म्ड. बहुत सारे कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनाई गई, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जैसे. द बोल्शविक एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स. बोल्शविक ने कॉलोनियल लोगों को एनकरेज किया ताकि उनके एक्सपेरिमेंट्स को और फॉलो किया जाए. मैनी नॉन रशियंस फ्रॉम आउटसाइड द USSR पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस. इस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी लोग जो USSR से थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया. पीपल ऑफ ईस्ट एंड बोल्शेविक्स फाउंडेड कॉमेंटर एंड इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलाइज्ड पार्टी. सम रिसीव्ड एजुकेशन इन USSR's कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी. कुछ लोगों ने इसमें ये एजुकेशन ली. एंड द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट बाय द टाइम आउटब्रेक सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता, ये जो यूनिवर्सिटीज़ एक आउटब्रेक हुआ. द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस. USSR ने सोशलिज्म को एक सोशल फेस दिया, एक ग्लोबल फेस दिया, एक वर्ल्ड स्टेचर दिया. Set by 1950, it was acknowledged within country that style of government in USSR was not in keeping with the ideas of Russian Revolution. By the end of 20th century के ख़त्म होते तक the international reputation of USSR as a socialist country had declined. जो इनकी रेपुटेशन थी USSR की एज अ सोशलिस्ट वो डिक्लाइन होने लगी. एंड इट वॉज रिकोगनाइज दैट सोशलिस्ट आइडियाज स्टिल इन्जॉयड रिस्पेक्ट. सोशलिस्ट आइडियाज़ थे वो अभी भी रिस्पेक्ट अपनी इन्जॉय कर रहे थे लोगों के अंडर में. बट ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वॉज वेरी रीथॉट इन वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज. अलग अलग डिफरेंट वेज में सोशलिज्म का जो आइडिया था वो कंट्री की तरफ से हर एक सिटी में, हर एक कंट्री में अलग था. सो क्लास 9 दिस वॉज आवर चैप्टर जो कि हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया. होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. आई विल बी सेंडिंग सम क्वेश्चन एंड आंसर्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर. Write it down in your notebooks and learn them thoroughly. Thank you so much.